Hello students, welcome to our channel. Today we are going to start Ohm's Law, Chapter 12, Electricity. From this we will study Ohm's Law. So now, here George Simon Ohm given a law which is called Ohm's Law. What is this? That it gives a relation. एक relation मिलता है हमें between the two electrical quantities. दो इलेक्ट्रिक क्वांटिटीज के बीच में जो रिलेशन है उसी को ही ओम्स लॉ बोला गया. Here we observe a bulb connected to the circuit with the wires and a battery. Here one positive terminal, negative terminal, potential difference between these two, it is V. As the current flow from positive to negative, this is I. I is the amount of current which is passing from positive terminal to the negative terminal. So here if we take two battery instead of one battery, अगर हम क्या करें दो बैटरी लेंगे, again one positive and negative, potential is V. Now when the current passes through it, that is here, instead of this three batteries. So as you increase the potential, as you increase the potential, the amount of current will also increase. What is about this Ohm's law? Which what it states, क्या कहता है Ohm's law? That current through a metallic conductor is directly proportional to potential difference. जितना भी आप पोटेंशियल देंगे उसके करस्पॉन्डिंग उतना ही अमाउंट ऑफ करंट हमें मिलता जाएगा अक्रॉस इट्स एंड प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट. सबसे पहले हमें याद रखना है कि द कंडीशन इज दैट टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट. हियर लेट L that is length, A that is area, T temperature, M material remain constant. Here in this we say V is directly proportional to I. पहले आपने एक बैटरी ली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है और उसके करस्पॉन्डिंग करंट भी इंक्रीज हो रहा है. इन दिस इफ यू विल टेक V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाओगे कोई कांस्टेंट आएगा, दैट कांस्टेंट वी कंसीडर एज R. उस कांस्टेंट को हम क्या मान लेते हैं, R मान लेते हैं. एंड टेक दिस I डाउन साइड, इस नीचे लेके जाएंगे तो V बाय आई किसके इक्वल हो जाएगा, किसी कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल. ठीक है, इस कांस्टेंट को ही क्या बोला जाता है, R, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस. बट आई एम सेइंग हियर द वैल्यू व्हिच इज कांस्टेंट हियर, इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. उसको हम क्या बोल देते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं. नाउ हियर V इक्वल्स टू, लेट्स लर्न द फॉर्मूला. V किसके इक्वल होता है, I इंटू R. V इक्वल टू I इंटू R, this is known as Ohm's law. इसको क्या बोलते हैं, Ohm's law. Now Ohm's law only hold true if the provided temperature, condition is, this is the one mark question, you need to understand it. क्या बोला गया है यहाँ पर कि जो टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए. ठीक है, फिजिकल फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट. इन सर्टेन कंपोनेंट इंक्रीजिंग द करंट रेजेस द टेम्परेचर. अगर आप क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, किसको इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, राइट तो यहां से जो करंट होगा वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. टेम्परेचर को इंक्रीज होने से करंट इंक्रीज हो जाएगा. An example of this is the filament of light bulb, in which the temperature rises as the current is increased. ठीक है, जैसे जैसे आप करंट को बढ़ाते हैं तो if you touch the bulb, then you see कि टेम्परेचर क्या हो रहा है, वो उसका बढ़ता जा रहा है. So here in the case the Ohm's law cannot be applied. इस केस में Ohm's law अप्लाई नहीं हो रहा, राइट. ठीक है, टेम्परेचर हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, और कुछ फिजिकल फैक्टर्स जो भी होंगे वो क्या रहने चाहिए, कांस्टेंट रहने चाहिए. द लाइट बल्ब फिलामेंट वायलेट्स Ohm's law, right? Now here Ohm's law statement, that is Ohm's law state that voltage across a conductor, हमने अभी पढ़ा V directly proportional होता है किसके, I के. I is the current flowing through it, right? Now what is the equation of Ohm's law? It is V equals to किसके, I into R, where V, what is V here, voltage which is applied across the conductor. I is the current which is flowing through it, and R is the resistance which is provided by the
कंडक्टर, जो भी रेजिस्टेंस क्या करेगा, कंडक्टर उसको प्रोवाइड करेगा। हियर लेट्स डू अ एक्सपेरिमेंट हियर। यहाँ पर हमने क्या किया, एक सर्किट कंसिडर किया। सर्किट के अंदर सबसे पहले बैटरी 3 वोल्ट, रेजिस्टेंस मिला 6, तो वी नो फॉर्मूला इट इज इक्वल टू V बाय आई। ठीक है, यहाँ से हम V इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, I इंटू आर होता है। करंट कितना है 0.5, आर रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर 6, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3, सो इट सेटिस्फाई दिस। सेम एज इट इज यू कैन फाइंड ऑल द वैल्यूज एंड हियर व्हाट वी ऑब्जर्व that when we compare row R1 and 4 and 2 and 5, we come across that doubling the total resistance। अगर आप क्या करोगे, डबल कर दोगे रेजिस्टेंस को, ठीक है, तो यहां से करंट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, द वैल्यू विल बी डबल्ड, राइट, नो सॉरी, हियर इफ यू इंक्रीज दिस वैल्यूज, अगर आप डबल कर रहे हैं, स्टिल द टोटल रेजिस्टेंस जो भी होगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी, कांस्टेंट। अगेन आई एम टेलिंग इट, clear this point। So here if you have this one 3, resistance is 6, right, current is 0.5। here I double the value, 3 की बजाय हमने क्या ले लिया 6, right, 6 की बजाय क्या ले लिया हमने 12। तो यहाँ से आपने क्या ऑब्जर्व किया, this value is remain constant। ठीक है, okay, here then second and fifth, this one is second and here we take the another one। तो उसमें भी हम देखते हैं कि दोनों में जो वैल्यूज रहती हैं वो क्या रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं। पाइप, वाटर पाइप analogy for the Ohm's law। Ohm's law describe the current flow through the resistance when different electric potential are applied at each end of the resistance। Since we can't see electron, the water pipe and analogy help to understand electric circuit better। ये जो पाइप वाला सिस्टम है वो ज़्यादा अच्छे से बता सकता है आपको कि कैसे करंट फ्लो करता है। सो हियर वी सी दैट दिस इज अ पोटेंशियल फ्रॉम हायर टू लोअर, राइट। अब जैसे ही आप क्या करेंगे, विड्थ जो भी पाइप की होगी उसको बढ़ाएंगे तो अमाउंट ऑफ करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, लेकिन जैसे ही आप इसको क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाटर का अमाउंट क्या हो जाएगा, कम। सो हियर व्हाट आई एम सेइंग कि रेजिस्टेंस अगर कम है, रेजिस्टेंस अगर क्या है, कम, ठीक है, तो यहाँ पर जो फ्लो होगा वाटर का वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ करंट विल बी मोर। इफ रेजिस्टेंस इज मोर, अगर रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, तो जो करंट होगा, जो फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्ट कर रहा है तो कम अमाउंट में करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। सो वाटर इज एनालॉगस टू वाटर प्रेशर, voltage is analogous to water pressure, the current is the amount of water flowing through the pipe and resistance is the size of a pipe। so if we decrease the size, then water amount of current that is passing through it, that is very very less। okay, and if we increase it, अगर आप क्या करोगे, bigger the pipe, then lower the resistance, right। okay, here let's do an experiment here। Ohm's law can easily verified by the following। आपने क्या किया, रजिस्टर लिया, अमीटर, वोल्टमीटर, बैटरी, प्लग की एंड रियोस्टेट। दिस इज बैटरी, रियोस्टेट, की, then ammeter, voltmeter, resistance। voltmeter, that is a device which is used to measure potential difference, right। A is the ammeter which is used to measure the current, करंट को मेजर करने के लिए। ठीक है, रेजिस्टेंस विच रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ द करंट। सो इनिशियली द की के इज क्लोज, रियोस्टेट इज एडजस्टेड टू गिव द मिनिमम रीडिंग इन द एमीटर ए और बी में। द करंट इन द सर्किट इज इंक्रीज ग्रेजुअली, किसको बढ़ाया गया, आई को इंक्रीज किया गया बाय मूविंग द स्लाइडिंग टर्मिनल ऑफ रियोस्टेट। रियोस्टेट इज जस्ट लाइक here if you move this iron thing, then क्या होता है, बार बार वैल्यूज चेंज होती है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, करंट को इंक्रीज करना शुरू करा by moving this one, right। so during the process the current flowing in the circuit and corresponding value of potential also recorded। तो उसके corresponding potential जो V आया उसको भी नोट किया गया, I को नोट किया गया और V को। this way different set of values of voltage and current are obtained। for each set of value V and I, the ratio of V by I is calculated। और क्या, potential by I, करंट को मेजर किया गया। so from there what we found कि यहाँ पर जो भी वैल्यूज आएंगी उसके लिए जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो ये कहा गया कि जो टोटल वैल्यू होती है, चाहे आप पोटेंशियल को कितना भी इंक्रीज करो
या डिक्रीज करो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा, और उससे जो रेजिस्टेंस आएगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। नाउ हियर experimental verification, we are saying V directly proportional to I, V by I equal to R. This is a wire, nichrome wire, length is 3 meter, diameter is 0.02. So as this current flowing through it, हमने कंडक्टर कंसिडर किया, एमीटर से अटैच किया, देन वोल्ट मीटर इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं और वोल्ट मीटर को पैरेलल में। So in this we have a positive and negative terminal. The current flow from positive to negative, right? So as it flow, we find the values of this. So here first current is 1, potential difference is 2. So here we get V by I, that is 2. Now next, here 2, potential difference 4, again it is 2. With these value, all the values we get difference, that is 2. आप पोटेंशियल को यहाँ पर क्या कर रहे हो, पोटेंशियल को इंक्रीज करते जा रहे हो, पोटेंशियल को इंक्रीज करते जा रहे हो तो भी रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो करंट भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, पोटेंशियल को इंक्रीज करने पर करंट भी इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ से हम कहेंगे रेजिस्टेंस क्या रहेगा, जो वैल्यूज आएंगी वो सारी की सारी देखो 6/3, 4/2, 2/1, दैट ऑल रिमेन सेम. सो दिस इज एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, राइट. In this we take a graph, one with the x-axis and y-axis, intersecting point as origin, V is on the x-axis and I current is it is on the y-axis. जैसे आप इनको ड्रॉ करेंगे we get here, अगर आपके पास पोटेंशियल 2 है, पोटेंशियल कितना है 2, तो करंट कितना है 1, पोटेंशियल 2, तो पोटेंशियल 2 यहाँ, करंट कितना है 1, तो दिस इज द पॉइंट विच वी गॉट हियर, राइट. सेकेंड थिंग, सेकेंड इज पॉइंट दैट 4, पोटेंशियल 4 और जो करंट है वो कितना है 2, सो 4 पर कितना आंसर है 2, 6 पर 3 है, जैसे ही मिलाएंगे वी गेट अ स्ट्रेट लाइन. सो दिस लाइन रिप्रेजेंट दी रेजिस्टेंस, किसको शो करता है, रेजिस्टेंस को. सो हियर वी ऑब्जर्व कि हमारे पास जो ग्राफ मिलेगा इट इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन. कैसे लाइन होती है हमारे पास, स्ट्रेट लाइन होती है, राइट. हियर इट इज अ लीनियर ग्राफ, राइट. नाउ फ्रॉम दीज ऑल थिंग्स वी कम टू अ पॉइंट दैट इज रेजिस्टेंस. हमें एक और टर्म मिलती है जिसको हम क्या बोल देते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं. So what is this resistance? See, a conductor with the atom and electrons are flowing through it. Electrons इसमें flow कर रहे हैं. So here, these all electrons they are moving in random direction. ये अलग अलग direction में move कर रहे हैं. But as you connect them with the battery or a cell, what we observe? These all will move in a single direction. सभी क्या करेंगे, एक ही direction में move करना शुरू करेंगे. In this, if atoms are more, resistance is more. देखो कैसे, यहां से करंट क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा. देखो रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है. रेजिस्टेंस का मतलब ही क्या है कि जो करंट के फ्लो को रोक दे, करंट के फ्लो को क्या करे, रोके, उसको हम क्या बोल देते हैं, रेजिस्टेंस. लाइक इफ यू सी योर वॉच, तो वॉच के ऊपर लिखा होता है वाटर रेजिस्टेंस. वाटर रेजिस्टेंस मतलब उसके अंदर से वाटर नहीं जा सकता, मीन्स वाटर को रेजिस्ट करने वाला. सेम एज इट इज करंट को रेजिस्ट करने वाला क्या कहलाती है, वो प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस कहलाती है, ठीक है. हियर करंट इज लेस. सो in this we here say when atoms are less, resistance is less. In this we say current is more, right. So here the property of conductor due to which it oppose the flow of current, it is called resistance. जो करंट के फ्लो को अपोज करे, उसको रेजिस्ट करे, ठीक है, उसको ही हम क्या बोल देते हैं, रेजिस्टेंस बोल देते हैं. In this we will see here the SI unit of resistance. As you know, V is directly proportional to I, right. V is directly proportional to I and V is equal to IR. V is equal to IR. We say the unit of R, here R we know it is equals to V by I and unit of resistance that is ohm. किससे रिप्रेजेंट करते हैं उसको, ओम से, ठीक है. Here in this OHM we represent here R in ohm. पोटेंशियल की यूनिट क्या थी, वोल्ट. करंट की यूनिट क्या है, एम्पियर. डिवाइड देम वी गेट हियर ओम. सो व्हाट इज 1 ओम, 1 ohm is the resistance which is offered by the conductor when 1 ampere of current is flowing in 1 potential difference, 1 volt potential difference, right.
when 1 volt potential difference is applied across the end of a conductor, and by that only 1 ampere of current is flowing in the circuit, that resistance which is offered by this conductor is called 1 ohm, right? So here we see the particular definition. If potential is 1 volt, current is 1 ampere, then resistance is 1 ohm, right? Here, what are the factors that affecting resistance? We are saying it that V is equal to I into R and R equal to V by I. But here this resistance does not depend on potential and current. ये बिल्कुल भी depend नहीं करती. So just remove it from your mind that if we increase the potential or current, then resistance will be affected. It only depend on length, area, material, temperature. लेंथ ऑफ कंडक्टर, कैसा कंडक्टर है, एरिया ऑफ कंडक्टर, मटेरियल क्या यूज कर रहे हैं, टेम्परेचर क्या है. इफ वी टेक हेयर कंडक्टर, अगर कंडक्टर की लेंथ को इंक्रीज कर दो तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है. अगर एरिया को, यहाँ देखो ये लेंथ को इंक्रीज किया, नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज होंगे, आसानी से मूव कर पाएंगे और फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इजीली मूव करेंगे. बट व्हाट अबाउट एरिया, एरिया को जैसे ही आप कम करते हो, सी दिस, अगर आप देख रहे हो कि अगर कोई भी किसी भी बस में या फिर मेट्रो में, इफ यू से दैट एरिया इज लेस फॉर द पर्सन टू मूव इनसाइड एंड आउटसाइड, देन इफ इट इज लेस, नंबर ऑफ पर्सन्स आर नॉट एबल टू मूव इनसाइड, राइट. तो कम एरिया में क्या होगा, ज्यादा पर्सन नहीं जा पाएंगे. तो सेम एज इट इज वी आर सेइंग इफ डोर इज वाइडर, हियर मोर पीपल कैन एंटर, आसानी से लोग जा सकेंगे. रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पर लेस हो जाएगा. इन दिस, इफ वायर इज थिकर, अगर वायर मोटी है, वायर क्या है, मोटी है, तो आराम से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वहां पर लेस हो जाएगा, राइट. ओके, नाउ हियर hence R is inversely proportional to area. If area is less, resistance is more. ठीक है, एरिया अगर कम है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पर ज्यादा होगा. अगर एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम. ठीक है, here in this R is directly proportional to L by A. If we are saying directly proportional to L, inversely proportional to area, and combine it, we get R is equal to L by A. Now if directly proportional sign we remove, we get another constant which is called rho. इस रो को क्या बोल देते हैं, resistivity बोल देते हैं. We called it resistivity. Okay, so in this we say it is rho, RHO, right. So unit of resistivity, can you find here, R equals to, we are saying rho into L by A. Find this rho, so it is here R into A by L, right. So after this, solving this, we get R is rho into L by A, rho equal to R into A by L. What is the unit of resistance? It is ohm, right. Okay, and area, that area, yes, it is meter square, and length it is meter. Now as you cancel it, we get here ohm meter. Okay, 1 meter square से 1 meter cancel हो गया और you get a value that is ohm meter. This is the SI unit of resistivity. Okay, so what is practical understanding of resistivity? It is used in electrical circuits, right. Copper wire को use किया, साथ में फिर एल्युमिनियम वायर को यूज किया. तो जो भी वायर आप लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, उसकी रेजिस्टिविटी को देख सकते हैं. सो रेजिस्टिविटी इज द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. डिफरेंट मटेरियल है, डिफरेंट रेजिस्टिविटी, आप देख सकते थे, अभी वैल्यूज आपको दिखाई दे रही थी. सो हियर दिस इज ऑल अबाउट, वी हैव सम क्वेश्चंस ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड. अभी हमने किया रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन लेंथ, एरिया एंड मटेरियल. ठीक है, नाउ हियर next is how does resistance of wire change when length is triple. अगर लेंथ को ट्रिपल कर देंगे तो कैसे होगा. तो इफ लेंथ इज ट्रिपल, L को आपने क्या किया, 3 टाइम्स कर दिया. ठीक है, रेजिस्टेंस इज आल्सो ट्रिपल. आप कह रहे हैं ना R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा. ओके, नाउ हियर इफ डायमीटर इज ट्रिपल, डायमीटर को ट्रिपल करो, एरिया इज इक्वल टू होता है d स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है. डायमीटर को अगर आपने ट्रिपल कर दिया तो यहाँ पर 1/9 टाइम हो जाएगा. 1/3 है ना, तो 1/3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/9. नाउ इफ मटेरियल इज चेंज, रेजिस्टिविटी इज आल्सो चेंज. ठीक है, इफ रेजिस्टिविटी इज ट्रिपल, रेजिस्टेंस इज आल्सो ट्रिपल. विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू ए थिक वायर. अभी हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास स्पेस है ना, तो उसमें से क्या होगा, आसानी से करंट जाएगा, easily current can flow through it. ठीक है, if you have a wider space,
then easily current can flow. तो यहाँ पर करंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, राइट. So here, when connected to a same source, current will flow more easily through a thick wire than the thin wire. R is directly proportional to 1 by A, right? Okay. So this is all about. The next lecture we will discuss about the another terms. Thank you. Bye bye.